Hi, good morning. Can you hear me? Are you able to hear me? Okay, wonderful, wonderful. Great, great. So let's quickly start with our today's session. So yes, we are going to do tenses today, and I know that how tenses have been intimidating, and you are not the only one. It has been intimidating for most of the students. So there's nothing to worry. Our focus would be to understand the questions, and we'll be basically, learning in very crisp fashion. So I'm not going to take 3 to 5 sessions to ensure that you are learning the concept well. I'm just trying to adjust the screen. Okay, so we are going to keep the discussion to be very interesting, and we'll talk to the point, and I will try to cover those points which are more tested in the exam. ठीक है, तो चलो करके देखते हैं. Before we begin, let me quickly introduce myself. My name is Juhi Narula. I have 12 years of experience in training students for CAT, GMAT, and GRE. I also happen to be a life skills coach and a content creator. I've done my bachelor's in technology and master's in business administration. So this is the Telegram channel. Please join the Telegram channel so that you get the notifications about the upcoming sessions. Now, apart from our special classes, we also offer 2 subscriptions that we call Plus and Iconic. So, what happens in Plus subscription is that they are free they are live classes, they are weekly tests, the courses are structured, and there is unlimited access to the information. And as far as Iconic is concerned, all the benefits of Plus, apart from it, you have a personal coach who is going to handhold you in your entire journey of preparation, detailed test analysis, expert guidelines, then study material is offered, and there is customized study plan. So amazing options, right? And if you're going for Plus for 6 months, the fees is 16,400. If you're going for 12 months, it is 22,550, and if you're going for 24 months, it is 32,800. If you're going for Iconic, the fees for 12 months is 39,500. For 24 months is 59,999. Good morning, Nirbhay. Good morning. Hi Shweta, and you can use the code JNLive10 to get a 10% off on any of the subscriptions. ठीक है, चलो अब ये this is the channel for IP Mat BBA. You can basically subscribe to the channel so that you get the notifications, right? And the many interesting things happening on it. So let's quickly start with tenses. So the idea is to learn the concept. Maybe 2-3 questions we'll solve it together, right? And one I'll give you as the homework. So I'm not really making it. Already tenses ka class is slightly heavy. So I just don't want to bombard you with a lot of information, with lot of questions. So what are we going to do? 3 questions we'll do it together. One I will give it to you as a homework, and as we proceed in the coming sessions, I'll incorporate more questions of tenses. तो आप एक बार खुद से भी पढ़ लोगे तो आपको ease आ जाएगी. So in these cases you have to slightly revise the rules also to be comfortable. ठीक है, तो करके देखते हैं. चलो, I hope the screen is clearly visible to everybody. I basically made a table. I wanted just one slide, but then that was becoming too stuffy. तो देखो, basically अगर आप tenses की बात करते हो, तो tenses और verbs में क्या difference होता है? Verb बता रहा है कि भाई एक action हो रहा है. Tense is telling you about the time of the action, right? तो major difference तो ये है. So this is what varies when we talk about verb and tenses. So verb tells you about the action. Tenses help us identify the time of action. ठीक है. So to begin with, this is something that you need to know. अब for any particular tense that we are talking about, पहले तो ये कि what are the categories to tenses? तो 3: present, past, future. तो अगर मैं बहुत सिंपल सा स्टार्ट करूं तो भाई ऐसा है कि मेरे पास 3 तरह के टेंसेस हैं. एक एक्टिविटी जो हो गई उसके लिए मैं पास्ट यूज कर लूंगी, जो अभी चल रही है उसके लिए प्रेजेंट और फ्यूचर. सो ये 3 मेजर टेंसेस हैं. अब इन 3 मेजर टेंसेस की फर्दर हर पे 4 कैटेगरीज है. ठीक है. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल द कैटेगरीज. यहाँ तक कोई दिक्कत है?
I'll ask you 100 times today कि कोई दिक्कत है, and you have to ask 100 questions if you feel the need, right? So verb बता रहा है action हो रहा है, tenses बता रहा है time of action हो रहा है. Broadly 3 tenses, something that has happened, something that is happening, and something that is going to happen, past, present and future. And then each tense has got further 4 categories that we are going to learn. So ऐसे 12 tenses होते हैं, but primarily कौन कौन से important है वो मैं आपको mark करके बताती जाऊंगी. यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ. Any doubts till here? चलो नहीं है तो फिर let's start discussion. Okay, so then let's quickly. नमन सी एक्चुअली कैट में डायरेक्टली तो नहीं आएगा, बट बाकी जो अदर मैनेजमेंट एंट्रेंस टेस्ट में उसमें आता है. एंड कैट इज फुल ऑफ सरप्राइजेस. तो कोई बड़ी बात नहीं है कि सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस कंप्लीशन के 1-2 क्वेश्चंस अपीयर कर दें, राइट? सो दैट इज द पॉसिबिलिटी. अगर आप अभी तक पूछ रहे हो पैरा जंबल्स आता है, पैरा कंप्लीशन आता है, हाँ आप सही बोल रहे हो. बट यस देयर इज, आई मीन स्टिल ट्रेनर्स डू ग्रामर एंड सेंटेंस कंप्लीशन एंड वोकैबुलरी, क्योंकि समवेयर और द अदर यू सी दीज क्वेश्चंस, यू नो, अपीयरिंग इन अदर मैनेजमेंट एंट्रेंस टेस्ट. ठीक है, चलो. सो अब ये देखो, ये दीज आर 4 टेंसेस. कौन सा? एक तो बोलते हैं हम सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट, सॉरी. सो वन इज सिंपल प्रेजेंट. सिंपल प्रेजेंट क्या करता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. सो एनी वर्ब हैज 3 forms: फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म. सो व्हाई आर वी डूइंग इट? आई मीन 4 फॉर्म्स क्यों नहीं होते और 2 क्यों होते हैं और 5 क्यों नहीं होते? इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है. ये एक स्टैंडर्ड कन्वेंशन है जो फॉलो कर रहे हैं. ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है. सो आई वर्क, you work, we work, they work. तो यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट आ जाएगा. अगर आप ये सारे सब्जेक्ट्स ले रहे हो तो प्रोनाउन प्लूरल रहेगा, और अगर आप ले लोगे she works, राइट, और नमन works और गरिमा works, राइट. So that ways, you know, you can see the sentences. अब हम सिंपल प्रेजेंट को कहाँ यूज करते हैं? फॉर रेगुलर एक्टिविटीज, ठीक है, और फॉर यूनिवर्सल ट्रूथ्स. सो इफ आई जस्ट ऐड इट, मतलब मैं अगर आप इसको थोड़ा आराम से समझाऊं, हमने स्टार्ट किया सिंपल प्रेजेंट से. क्या है ये? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. कहाँ यूज करते हैं? फॉर रेगुलर एक्टिविटीज और फॉर यूनिवर्सल ट्रूथ्स. कैसे? लेट मी एक्सप्लेन, लेट मी गिव यू सम एग्जाम्पल. आई गो टू वर्क एवरी डे. I brush my teeth every day. Okay. I study every day. So this is for regular activities, your day-to-day activities. And universal truths कैसे है? Man is a social animal. Okay. Earth revolves around the sun. समझ में आ गया? सिंपल प्रेजेंट. यहाँ में किसी जो चल रहा है स्टोरी, इसमें किसी को दिक्कत है? इस पे क्वेश्चंस नहीं आएंगे. दे आर टू इजी टू बी टेस्टेड. एनी डाउट्स? एनीबडी? निर्भय, श्वेता, नमन, अरुण, गरिमा, लक्ष्य, रितिका, नताशा, निर्भय. एनी डाउट्स? एनीबडी? यहाँ तक किसी को डाउट है? कोई परेशानी है? आज सीख के जाना चाहिए. हम क्वेश्चंस कल कर लेंगे, आई डोंट माइंड. अगर आप थक जाओ तो हम
If you say after 5 minutes also, we can decide that बहुत हो गया. But once we proceed, we should be sure, right? Simple present है, जो day to day activity होती है या एक universal truth है, उसके लिए use कर रहे हैं, right? इसको test नहीं करते exam में. It's too simple to be tested. ठीक है? So this is the first category. ठीक है? चलो, good. Now let's come to the next one. Next is, हाँ, good. If you have that, wonderful. अच्छी बात है. If you're finding it interesting. ऐसे मैं कुछ ही स्टूडेंट से सुनती हूँ, यूजुअली सबको इंटिमिडेटिंग लगते हैं, आपको इंटरेस्टिंग लगते हैं, तो वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है. चलो, सो आई विल जस्ट क्लियर दिस. ओके, अब आप दूसरी कैटेगरी पे आ जाओ, जो प्रेजेंट की ही पढ़ रहे हैं, विच इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस. ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या होता है? इज, एम और आर प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. तो अगर सिंगुलर है तो इज, प्लूरल है तो आर, और आई के साथ एम. सो आई एम टीचिंग इन द क्लास. ठीक है, दे या यू के साथ भी आ रहेगा, यू आर टीचिंग इन द क्लास. या वी के साथ भी आ रहेगा, वी आर टीचिंग इन द क्लास. और शी या ही या रितिका इज टीचिंग इन द क्लास. तो आई होप आपको यूसेज समझ में आ गया. एक्शन हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. एक्शन हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. मैं जब बोल रही हूँ और एक्शन हो रहा है, उसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस को यूज करते हैं. अभी इस टाइम, सिंस आई एम टीचिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, आई एम यूजिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस. एक्शन दैट इज हैपनिंग व्हाइल द पर्सन इज स्पीकिंग. आई होप प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्लियर है सबको. कोई डाउट है? तो अब अगर आप देखोगे, तो जब मैं आपको कहती थी कि वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ रहा है, तो मैं आपको कहती थी कि भाई ये अकेला वर्ब नहीं हो सकता. अगर इसको वर्ब की तरह बिहेव करना है तो इसके पहले हेल्पिंग वर्ब होना जरूरी है. पास्ट कंटिन्यूअस होगा तो वॉज वर आ जाएगा, नहीं तो हैड आएगा, जो भी आएगा. वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी अकेला एग्जिस्ट नहीं करता इन टर्म्स ऑफ वर्ब. इट हैज टू बी हैविंग सम हेल्पिंग वर्ब बिफोर इट. आर वी क्लियर विद प्रेजेंट कंटिन्यूअस? निर्भय, आपको कोई डाउट है? अरुण, Garima, the question is for everybody who's present in the class. कोई डाउट है? चलो, ठीक है, गुड. चलो, so coming back to our table, so we have done the second one, present continuous. I am working continuous action at the present time. Good, thank you for the response. Right, so 2 done. ठीक है, अब वी आर कमिंग टू प्रेजेंट परफेक्ट. अब ये तो आप लोगों की जो लाइफ खराब कर रखी है, वो 3 टेंसेस ने कर रखी है, और वही 3 टेंस बार बार टेस्ट होंगे. तो अब थोड़ा सा ना ऐसे बहादुर बन के पढ़ाई करेंगे. ठीक है, स्लाइटली वी आर गोइंग टू डिस्कस थिंग्स इन डिटेल्ड फैशन. चलो देखो कैसे. मैं आपको ना 3 थोड़ा ऑफ टॉपिक जा रहे हैं. हाँ, लक्ष्य करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट तो सीख लो. क्वेश्चन तो हम करते ही हर क्लास के बाद. मैंने तो शुरू में ही कहा क्वेश्चंस करेंगे, फिर देन आज कम करेंगे और हर क्लास में 2-2 या 3-3 टेंसेस आगे से इंकॉर्पोरेट कर लेंगे. ठीक है, एक साथ, क्योंकि आपको एक बार ये रिवाइज करना पड़ेगा टू सॉल्व द क्वेश्चंस. ठीक है, पर करेंगे क्वेश्चंस, मैं दिखाऊंगी एप्लीकेशन. ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है? हैज या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म. ठीक है, सो हैज सिंगुलर के लिए शी हैज completed her work. Right, or they have completed their work.
Okay, now when we are talking about present perfect, it is basically an action that has just finished. ठीक है, रिसेंटली फिनिश्ड एक्शन के लिए प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब है काम हो गया. बी इट पास्ट परफेक्ट, बी इट फ्यूचर परफेक्ट. परफेक्ट का मतलब है यू आर डन एंड डस्टेड विद इट, राइट. अब यहाँ पर जो क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं, माइंड यू, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और सिंपल पास्ट, इसमें से इन तीनों में डिफरेंस क्रिएट करने के 90%, ये भी मैं सेफ होके आपको बता रही हूँ, 90% क्वेश्चन इस पे ड्रिवन होंगे. तो देखो, आई जस्ट रब द बोर्ड, और ये आई थिंक ये क्लियर है सबको. एक्शन दैट इज जस्ट फिनिश, मैंने अभी काम कंप्लीट किया. अब मैं आपको 3 सेंटेंसेस लिखकर बता रही हूँ, मुझे बताना इन तीनों में डिफरेंस क्या है. ठीक है. वन इज आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क. ठीक है, ये थोड़ा सा मैं पहले डिस्कस कर रही हूँ, मे बी पास्ट करने के बाद करना चाहिए था, बट आ गया तो आई जस्ट कुड नॉट स्टॉप माई सेल्फ. I had completed my work and I completed my work. Can you see these 3 statements? तो यहाँ पे क्या है, have plus verb का थर्ड फॉर्म है, तो ये प्रेजेंट यूज कर रही हूँ मैं. हाँ नहीं, ये टेंसेस के फॉर्म में डिफरेंस तो ऑफकोर्स आई एम श्योर आपको दिख जाएगा, वो बिल्कुल सही बोल रहे हो. हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो ये पास्ट परफेक्ट है, राइट. पास्ट परफेक्ट है, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है, और ये सिंपल पास्ट है. ठीक है, 3 सेंटेंसेस लिखे हैं मैंने. अगर तीनों का मतलब यही है कि मेरा काम हो गया है, राइट. ये जो ऑन टर्म्स ऑफ ग्रामर आई हैव टोल्ड यू, इफ ऑल द 3 सेंटेंसेस मींस दैट माय वर्क हैज बीन डन. ध्यान से सुनो मेरी बात, ठीक है. आई विल टेक वन मोर सेशन, पर जब तक समझ नहीं आता वी वुड नॉट प्रोसीड. आपको ये चीज समझ में आ रही है, तीनों कह रहे हैं मेरा काम हो गया. पहले क्विकली लेट मी नो, ये इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? आर दीज ऑल 3 सेंटेंसेस सेइंग दैट Juhi has completed the work, right? अगर तीनों सेंटेंसेस यही इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहे हैं, तो फिर आप मुझे एक ये बात बताओ कि फिर 3 टेंसेस क्यों हैं? If all the 3 sentences are saying हाँ टाइम बेस्ड, तो कैसे? What is the difference? बिल्कुल सही बोल रहे हो नताशा, टाइम बेस्ड डिफरेंस होगा. कैसे टाइम बेस्ड डिफरेंस है? आप सपोज मुझे ये 3 ऑप्शंस मिल जाए, लक्ष्य एक टाइप का क्वेश्चन ही है, इसमें से एक सेंटेंस पिक करो. मैं कैसे पिक करूं? Which one is correct? हाँ, तो डिफरेंट टाइम पे बोल रहे हो, पर तीनों का आइडिया तो एक ही है ना. तो मैं कब बोलूं कि आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, कब बोलूं आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क, कब बोलूं आई कंप्लीटेड माई वर्क? आपको मेरा क्वेश्चन समझ में आ गया ना? ऑल द 3 आर सेइंग, यही कॉन्टेक्स्ट है. हाँ, so let's quickly see, are we clear? 90% of the questions, if you're getting a verb tenses, are usually driven by the understanding that what is the difference among these 3 sentences. ठीक है, तो चलो अब बताओ फिर, अगर किसी को क्लैरिटी है कि कहाँ यूज करेंगे. जस्ट फिनिश, फिनिश इन द पास्ट, प्रेजेंट आई हैव. देखो, आई हैव कंप्लीटेड का मतलब एक्शन हैज बीन फिनिश्ड. ठीक है, आई हैड कंप्लीटेड का मतलब परफेक्ट हो गया ना रितिका, बोथ द केसेस. और कंप्लीटेड भी का मतलब है हो गया काम. अगर परफेक्ट यूज कर रहे हैं, मैंने आपको पिछली स्लाइड में भी बताया था, एज फार एज द परफेक्ट इज कंसर्न, दैट मीन्स योर वर्क इज डन. ठीक है, ये हो चुका है, राइट. अभी so this is something that you basically need to understand. Natasha बोल रही है presently done, done in the past. presently done कैसे? अगर मैंने 2 मिनट पहले खत्म किया है, तो it is been discussed in the past, मतलब पास्ट की बात हो गई ना. recent past में फिनिश किया, कैसे यूज बताया था? work that has been completed in recent past. चलो I'll tell you. देखो, ये तीनों सेंटेंसेस इन अ वे ग्रामेटिकली करेक्ट है. ठीक है, अब क्या डिफरेंस होता है, लेट मी टेल यू. धीरे धीरे चलते हैं. तो पहले ये देखो, अगर आपके पास ये सेंटेंसेस हो, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क,
राइट। एक तो ये सेंटेंस है, ठीक है। एक सेंटेंस हो गया, आई कंप्लीटेड माई वर्क। क्या मैंने सिंपल पास्ट यूज किया है, वर्क का सेकेंड फॉर्म है। Can you see these three sentences? So I have completed my work. I completed my work yesterday. I had completed my work before lunch arrived. And exactly यही decide करता है, जैसे नताशा बोल रही थी कि context और रितिका बोल रही थी somewhere around this. तो जब आपको action के completion पे focus करना है, action पे focus करना है, तो आप use करेंगे present perfect. अगर आपको एक्शन के टाइम कब कंप्लीट हुआ इस पर फोकस करना है तो आप यूज करोगे सिंपल पास्ट, और ये मैं बाद में डिस्कस करती हूँ। तो पहले ये देखिए, अगर आपको सिर्फ ये स्टेटमेंट एक बार भूल जाओ। अगर आपको मिलता है आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क, आई कंप्लीटेड माय वर्क, अगर येस्टरडे नहीं होता, ध्यान से सुनो मेरी बात, आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क, आई कंप्लीटेड माय वर्क, अगर इन दोनों में आपको चूज करना हो तो आप इस सेंटेंस को चूज करोगे, because the focus is on the time, on the action that has been completed. The focus is on the completion of the action, right? और अगर आपके पास ये सेंटेंस होता आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, आई कंप्लीटेड माई वर्क येस्टरडे, अगर टाइम मेंशन होके आ रहा है तो सिंपल पास्ट को प्रेफर करेंगे। इन दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया आपको? कॉन्टेक्चुअली जो आप कह रहे थे कि कॉन्टेक्चुअल डिफरेंस होता है, ये होता है। ध्यान से देखो, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, अगर सेंटेंस है आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, आई कंप्लीटेड माई वर्क, यू हैव टू चूज बिटवीन द टू, यू विल गो फॉर आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। अगर टाइम मेंशन कर दिया आई कंप्लीटेड माई वर्क येस्टरडे, तो इस केस में टाइम पे एम्फेसिस होता है, टाइम ऑफ कंप्लीशन पे जब एम्फेसिस हो रहा है तो आप यूज कर रहे हो सिंपल पास्ट, और एक्शन पे, एक्शन के कंप्लीशन पे एम्फेसिस हो रहा है तो आप यूज कर रहे हो प्रेजेंट परफेक्ट। समझ में आ गया? एक लक्ष्य बोल रहा है समझ में आया, बाकी सबको क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है? ऋतिका इज सेइंग यस, नताशा, गरिमा, निर्भय, अरुण। देखो, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क मतलब मेरा एक्शन हो गया, तो किस पर, मैंने टाइम तो बताया नहीं ना इसमें निर्भय, तो यानी कि फोकस किस पे, गौतम आई जस्ट रीड इट, एक बार मैं पढ़ती हूँ इसको, लेट मी कंप्लीट दिस, फिर मैं देखती हूँ, ठीक है। आई कंप्लीटेड माई वर्क येस्टरडे, तो अगर मैं कंप्लीटेड माई वर्क तक देखती तो इन दोनों सेंटेंसेस में मैं इसको पिक करती। अगर टाइम का एस्पेक्ट आ गया तो जो सिंपल सिंपल पास्ट होता है उसमें आप टाइम मेंशन कर देते हो कि कब कंप्लीट हुआ, ठीक है निर्भय? अब आ गया समझ? But instead of time, what is used in present perfect? Some phrases are used right instead of time. गौतम, मुझे I'm very sorry, मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो। पास्ट परफेक्ट बोल रहे हो, प्रेजेंट परफेक्ट बोल रहे हो गौतम? थोड़ा इलैबोरेट करो गौतम, आई एम नॉट गेटिंग यू। पास्ट परफेक्ट, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क येस्टरडे, सो येस्टरडे कंप्लीटेड इसके साथ चलता है, ठीक है। आप लिख सकते हो तो टाइम पर भी एम्फेसाइज कर दोगे, दैट इज ओके, कुछ इनकरेक्ट नहीं है। अगर आप यहाँ तक भी लिखते हैं कंप्लीटेड माई वर्क, आई कंप्लीटेड माई वर्क, आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क, आपने थोड़ा लेट ज्वाइन किया, तो देन दीज थ्री सेंटेंसेस आर करेक्ट, कुछ इनकरेक्ट नहीं है इसमें, ठीक है। इट इज जस्ट दैट हाउ विल यू डिफरेंशिएट अमंग द थ्री व्हेन इट कम्स इन द एग्जाम। तो अगर आपको एग्जाम में दे रहे हैं तो जो आप लिख रहे हो वो देंगे, या फिर अगर दैट इज गिवन इट इज करेक्ट, बट इफ इट इज गिवन आई कंप्लीटेड माय वर्क, आई हैड कंप्लीटेड माय वर्क, देन डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट यू नीड टू पिक। हाँ, कोई भी टाइम का रेफरेंस हो सकता है गौतम।
ठीक है, आई होप इट इज क्लियर नाउ। निर्भय आपको समझ में आ गया? चलो ठीक है, अब इस पे देखो, जब हम ये लिखते हैं आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क, चलो गुड, वेरी गुड, आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क बिफोर लंच अराइव्ड। सो इसका जो एक्चुअल यूसेज होता है दैट इज दिस एक्शन कंप्लीटेड before a specific time in the past. और ये जो लंच अराइव्ड है, ये जो स्पेसिफिक एक्शन बताओगे ये हमेशा सिंपल पास्ट में बताओगे। यहाँ पे तो हैड कंप्लीटेड वाले सेंटेंस में बेसिकली क्या होता है, देयर वुड बी टू टेंसेस। सो अगर एक्चुअल सेंटेंस होता है तो आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क, आप उसको colloquially बोलते हो, which is correct because the action has been completed, but if you are going into the details, it is completed before a specific action in the past. Are we clear here? तो अगर आपके पास ये choice है I had completed my work before lunch arrived and I have completed my work, तो आप इस केस पे जाओगे। अगर ये पूरा सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक दे रखा है और ये दे रखा है आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, देन यू आर गोइंग टू पिक दिस वन। आर वी क्लियर विद द यूसेज? तीनों में आपको डिफरेंस समझ में आ गया? जब एक्शन के कंप्लीशन पे एम्फेसिस तो प्रेजेंट परफेक्ट, राइट? जब एम्फेसिस टाइम पर तो सिंपल पास्ट, एंड past perfect action completed before a specific time in the past, so there will be two verbs in had completed वाला actual statement. Clear है? और किसी के responses नहीं आ रहे? had completed past perfect होता है तो इसका मतलब है निर्भय ये action complete हो गया है, but इसमें mention करते हैं before a specific time in the past। जैसे इसमें मैंने कहा before lunch arrived, तो यूजुअली जो पास्ट परफेक्ट के सेंटेंसेस होते हैं उसमें दो वर्ब्स आते हैं, एक तो ये हैड कंप्लीटेड जो एक्शन के कंप्लीशन पे बात करता है, और जो टाइम का रेफरेंस देता है वो सिंपल पास्ट में रन करता है। इज दिस क्लियर? यस, सो दिस सेंटेंस इज पास्ट परफेक्ट। ओके, ठीक है। ये जो मेजर स्टोरी टेंसेस की चलेगी वो इसके अराउंड चलेगी, आप थोड़ा ध्यान रखना है इसका। आई एम अगेन सेइंग, कोई डाउट है तो वापस पूछ लो, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो गुड, वेरी गुड, ठीक है। सो आई when we talk about present perfect, I have worked, finished part, right? Completed actions, recent events, ठीक है। experiences, I worked in a company। और ये मैंने, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे ना इसको, ये नोट्स बहुत सफिशिएंट है, हर पॉइंट के आगे उसका एग्जाम्पल दिए, हर पॉइंट के आगे, ठीक है। जैसे एक्सपीरियंस थोड़ा सा ऊपर नीचे है, बट अगेन explanation is there. Experiences I worked on many accounts, so this is how you use present perfect. Are these three tenses clear to everybody? कोई डाउट है? सिंपल प्रेजेंट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यूनिवर्सल ट्रूथ्स या डे टू डे एक्टिविटीज। प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज प्लस एम प्लस आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, राइट? एक्शन हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। प्रेजेंट परफेक्ट हैज सिंगुलर के लिए, हैव प्लूरल के लिए, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, दिस कंप्लीटेड एक्शंस। एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होगा, ये आप पूछ रहे थे ना, ये देखो गौतम, आपको ये बीन में बहुत दिक्कत होती है, ये देखो हैज और हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सो प्रेजेंट परफेक्ट मतलब एक्शन एक पर्टिकुलर टाइम से स्टार्ट हुआ और अब मैं जब बात कर रही हूं तो अभी चल रहा है, ठीक है। आई हैव बीन टीचिंग सिंस 8 AM, तो मैंने 8 बजे पढ़ाना चालू किया था, अभी जब बात हो रही है तो मैं अभी भी पढ़ा रही हूँ। एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड इट इज स्टिल गोइंग ऑन व्हेन वी आर स्पीकिंग,
तो I have been teaching since 8 a.m. and at the point that I'm making the statement, I'm still teaching. Is this clear? ये आपको समझ में आ गया? प्रेजेंट की स्टोरी क्लियर है? एक बार फटाफट से पढ़ लो एंड देन क्विकली लेट मी नो. पढ़ाना 8 बजे चालू किया था, अभी तक पढ़ा रही हूँ. एक्शन दैट बिगैन इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यूइंग. ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट आपकी रेगुलर एक्टिविटी के लिए. प्रेजेंट कंटिन्यूस जब बोल रहे हो तो क्या काम हो रहा है? ठीक है, वी हैव बीन स्टडिंग सिंस 8 AM. करेक्ट, बिल्कुल सही है निर्भय. एक्शन दैट स्टार्टेड, आप 8 बजे से हो क्लास में, अभी भी पढ़ रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप. ठीक है, कोई डाउट है? प्रेजेंट परफेक्ट जस्ट कंप्लीटेड. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस आप बता रहे हो पास्ट में शुरू हुआ था और अभी तक चल रहा है. अब वापस मत कहना आपको टेंसेस नहीं आते, आपको और 2 मिनट लेने, आप ले लो. चलें आगे. Is present tense clear? These 4 tenses we have done, right? चलो, कोई दुविधा, any doubts, any difficulty, you can still ask. Has singular के लिए होगा of course and have plural के लिए होगा. हाँ, I've completed my work is present perfect. ठीक है, कर लें पास डिस्कस. आई होप देयर इज नो प्रॉब्लम. आपको लगे ना कि मैम ओवरबोर्ड हो रहा है तो यू लेट मी नो. बाकी फ्यूचर पे बहुत क्वेश्चंस ड्रिवन होते नहीं, और पास्ट में भी मेजरली पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, दैट वी हैव कवर्ड. ठीक है, तो सिंपल पास्ट इज वर्ब का सेकंड फॉर्म. ये मैंने आपको पहले ही बता दिया जब हम तीनों को कंपेयर करते हैं. फिनिश्ड एक्शंस एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट. ठीक है, तो स्पेसिफिक टाइम एट द पास्ट, राइट? जो एज आई वाज सेइंग, आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क येस्टरडे, राइट? आई वर्क लास्ट सैटरडे. इज दिस क्लियर? ये मैंने आपको पहले समझा दिया है, सिंपल है. आई होप इट इज क्लियर नाउ. और पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा? वॉज या वर्ब, वर्ब प्लूरल के लिए, वॉज सिंगुलर के लिए, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. तो एक कंटिन्यूअस एक्शन चल रहा था इन द पास्ट ऑफ कोर्स, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो मैं इस टाइम बोल रही हूँ, वो एक्शन है. अब कंटिन्यूअस का मतलब कोई एक्शन चल रहा था, पास्ट पास्ट है, और कंटिन्यूअस है. कंटिन्यूअस का मतलब चल रहा था, पास्ट मतलब वी आर टॉकिंग बैक. नाउ continuous action at a specific time. I was working when lunch arrived. I was playing when rain started. I was watching TV till guests arrived. So basically continuous action that was happening at a specific time in the past. तो टाइम का पैरामीटर आपको देना पड़ेगा. इन दोनों में कोई डाउट है आपको? और इसको उससे भी कंपेयर कर लो. आई वॉज वर्किंग से आई एम वर्किंग. सो आई एम वर्किंग एक्शन दैट इज हैपनिंग एट दिस टाइम. आप बोल रही हैं या बोल रहे हो तब जो एक्शन हो रहा है, ये एक्शन हो गया. इट वॉज एन एक्शन दैट वॉज कंटिन्यूइंग एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट. क्लियर है? कोई डाउट है? ठीक है, पास्ट परफेक्ट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन. आई हैड वर्कड अ लॉट बिफोर लंच अराइव्ड. सो एक्शन हैपनिंग बिफोर अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट. ये एक्शन हो चुका है, ये एक्शन चल रहा था. ये एक्शन हो चुका है, पास्ट परफेक्ट में, कंटिन्यूअस में चल रहा था. ठीक है, दोनों के बीच में डिफरेंस आप कह दो कि मैम इधर भी लंच अराइव्ड है, इधर भी लंच अराइव्ड है. सो दिस एक्शन वाज कंटिन्यूइंग, दिस एक्शन हैड हैपेंड. दिस इज द डिफरेंस. ठीक है, एनी डाउट्स? एनी डाउट्स यहां तक? एनीबडी? एक ऋतिका क्लियर बोल रही है, बाकी सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा? गुड ऋतिका, थैंक यू फॉर द रिस्पॉन्स. मुदित, गरिमा, निर्भय, गौतम, अरुण, Natasha, and it is to everybody who's attending the class. Past perfect continuous तो करने दो गौतम, अभी डिस्कस नहीं किया अभी इसको.
जितना पढ़ा है उसमें बताओ डाउट है कि नहीं है? This we haven't discussed as yet. Any doubts? So we have done 7 tenses till now. So you have to be clear. 7 clear है गौतम? फिर ये बताती हूँ मैं past perfect continuous. ठीक है, चलो, thank you. So this is had plus been plus verb first form plus ing. Past continuous action, right? जहाँ पे स्पेसिफिकेशन ऑफ टाइम नहीं दी हुई है. आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनदर कंपनी, ओपन एंडेड छोड़ देते हैं. ठीक है, समझ में आ गया? पास्ट में मैं काम करता था. क्लियर है गौतम? अब सी यूजुअली टू बिगिन विथ हाँ ठीक है, सिंपल प्रेजेंट वुड नॉट बी टेस्टेड. प्रेजेंट कंटिन्यूअस नॉट अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी. प्रेजेंट परफेक्ट को कर सकते हैं. कंटिन्यूअस टेंसेस को इसलिए यूजुअली अगर आपको हैज और हैव के यूसेज में टेस्ट करें तो इंक्लूड किया जा सकता है. तो इसमें ये दो लाइकली टेंसेस है. ठीक है, एंड कमिंग टू दिस सिंपल पास्ट, आपको पास्ट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट से यूज करके टेस्ट कर सकते हैं. पास्ट कंटिन्यूअस कम टेस्ट होता है, पास्ट परफेक्ट टेस्ट होगा. ठीक है, सो लक्ष्य हैड बीन studying in school. ठीक है, is this clear? Can we move ahead? Any doubts? Any doubts so far? Any doubts? Okay, chalo, very good. So let's quickly do future. Future पे questions कम आएंगे, so future is not important. You see few questions coming from future. पढ़ लेते हैं. I mean usage of had. See, had is basically a helping verb. So had can be used with present perfect. Had plus verb का third form. इसका मतलब action that has happened before a specific time. जैसे was और were होते हैं, ऐसे ही had होता है निर्भय. has होता है, जैसे have होता है, had past के लिए यूज करते हो. ठीक है, निर्भय समझ में आ गया आपको? ठीक है, चलो. So now let's come to future. So future is easy. Future में आपको ज्यादा टाइम लगेगा नहीं. So let's quickly see. Will, right? Will यूज करोगे, will या shall भी यूज करते हो. shall archaic हो गया, मतलब अब कम लोग यूज करते हैं. ठीक है, prediction है या spontaneous decision या offers है. I will work this weekend, prediction है. I will work for you tomorrow, right? So I hope simple past future तो clear है सबको. will लग जाता है, right? will के साथ या shall के साथ verb का first form. ठीक है, I will be working, तो इसमें तो कहीं ये होगा ही नहीं. अगर मैं, अच्छा आप तीनों में डिफरेंस देखो. अब आप ये डिफरेंस देखते जाओ. ठीक है, मैंने बोला I am working, I was working before the bell rang. I will be working. Action happening at the time of speaking, action that was happening in the past before a specific time. I will be working, action that is going to happen in the future. Are we clear between among all these three statements? This is present continuous, this is past continuous, and this is future continuous. इसमें कोई डाउट है तो मुझे बता दो. क्लियर है? ठीक है, सबको क्लियर है? चलो, गुड. सो लेट्स सी. फ्यूचर परफेक्ट क्या होगा? ऑफ कोर्स परफेक्ट मैंने आपको बताया ना, कंटिन्यूअस मतलब कंटिन्यू करेगा. परफेक्ट का मतलब हो गया. परफेक्ट का मतलब ही यही है कि
any action that will be completed in future. ठीक है, clear है? Action. So if I say I have completed my work, मेरा emphasis completion of the action पे है. I have just finished. When I say I had completed my work, ideally मुझे बताना चाहिए before a specific time in the past. Before lunch arrived. और अगर आप ये बोल रहे हो फ्यूचर परफेक्ट, आई विल हैव वर्क, तो मुझे पता है मैं ये काम फ्यूचर में खत्म कर लूंगी. ये मैंने कर लिया रिसेंट पास्ट में, ये मैंने खत्म किया बिफोर अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट, और ये मैं फ्यूचर में फिनिश करूंगी. सो दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट, दिस इज पास्ट परफेक्ट, दिस इज फ्यूचर परफेक्ट. परफेक्ट क्लियर है आपको? रितिका के अलावा भी कोई रिस्पॉन्स दे दो भाई. ठीक है, गौतम आपको समझ में आ रहा है? थैंक यू नताशा, थैंक यू राधा. ओ गुड टू हैव यू राधा. हाय. ठीक है, चलो. गुड अरुण, थैंक यू. गुड टू हैव यू, गुड टू हैव यू. चलो, सो लेट्स क्विकली कम टू फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. इसको हार्डली यू विल बी हैविंग अ क्वेश्चन. ठीक है, सो दिस सी विल आएगा प्लस हैज या हैव डिपेंडिंग ऑन सिंगुलर और फ्यूचर, प्लस बिन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ing. Now usually future perfect continuous is never tested because sentences बहुत लंबे हो जाते हैं, तो जो करेक्ट आंसर्स की एक्सपेक्टेशन होती है वो जितना क्रिस्प हो उतना करेक्ट मानते हैं. ठीक है, तो कंप्लीट कंटिन्यूअस फ्यूचर एक्शन. हाय समीक्षा, हाउ आर यू? सो वी जस्ट कंप्लीटेड विद द कॉन्सेप्ट. अभी क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है, सो कंप्लीटेड फ्यूचर एक्शन एट अ गिवन टाइम. तो एक कंटिन्यूअस फ्यूचर एक्शन हो रहा होगा, कंटिन्यूअस हो रहा होगा. ठीक है, एट अ गिवन टाइम, तो टाइम का इंस्टेंस दे देंगे आपको. ठीक है, आई एम गुड, थैंक यू. ठीक है, सो व्हेन आई से आई हैव बीन टीचिंग सिंस 8, तो ये मैंने आपको बोला है future perfect continuous, simple perfect, you know, I'm sorry, I'm just getting myself confused, right? Simple perfect present perfect continuous में क्या होगा? Action that has started at a particular time and it is still continuing. So if I say I am, okay, let's quickly go. I don't know, I am myself mixing things. ठीक है, तो I have been teaching since 8 a.m. So I started teaching at 8 and it is still continuing. Okay, so this is present perfect continuous. Now past perfect continuous is when you are talking about a continuous action that has happened in the past, and future perfect continuous is action that's going to continuously happen in the future, but you have to specify a time. Is this clear now? All the 12 tenses. I really try to keep the discussion crisp and to the point. You can just go home and revise, and beyond this there is nothing which should be tested. ठीक है, चलो. So let's do some questions. कर लें अभी. I hope you are ready. पता तो तभी चलेगा. So use this feature, ask a doubt. ठीक है, so you go to ask a doubt, select the question, crop the question and select the section from where the doubt is coming from. ठीक है, चलिए. ये मैं करा दूं एक आपको. व्हाट डू यू से? देखो, until Rennie Robinson made her debut in a Cathedral Daggers uniform, Anglo-Indians were prohibited to participate. So देखो, this is an action that is happening before a specific time in the past. Until Rennie Robinson made her debut. निर्भय एक बार देखो आराम से. ठीक है, कोई टेस्ट नहीं हो रहा यहाँ पे. देखो यहाँ से, इसको स्टेटमेंट से कंपेयर करो. I had completed my work before lunch arrived. देखो इसको. So action that has happened before a specific time in the past. तो ये before a specific time वाला पोर्शन इसने सॉल्व किया ना निर्भय. Until Rennie Robinson made her debut. दिख रहा है आपको?
तो हम कौन सा टेंस यूज करेंगे? हम पास्ट परफेक्ट यूज करेंगे। यहां तक पहले बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, इज दिस क्लियर? सो वर एलिमिनेट हो गया, हैव बीन एलिमिनेट हो गया, राइट? सो ए बी सी एलिमिनेट हो गया, इसी को किस में, सॉरी दिस इज डी एलिमिनेट होगा, सी और ई में से अब चूज करना है, राइट? इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? कुड यू सी दिस टाइम क्लू? राइट, अब have been prohibited from participating, had been prohibited to participate और had been prohibited from participating। तो prohibited के बाद from आएगा कि prohibited के बाद to आएगा? ये एक idiom का क्वेश्चन है, ये आप आज घर पे जाके ढूंढोगे। मैंने टेंसेस का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दिया है। अब आप ये बताओगे कि प्रोहिबिट सी नहीं, हाँ तो लक्ष्य सी और ई में से कोई एक आंसर होगा। दिस इज योर होमवर्क, वी आर गोइंग टू डिस्कस इट टुमारो। प्रोहिबिटेड के बाद फ्रॉम आता है कि प्रोहिबिटेड के बाद टू आता है? इन टर्म्स ऑफ टेंसेस क्वेश्चन क्लियर है सबको? टेंसेस का कॉन्सेप्ट बता दिया मैंने आपको, ये सिर्फ सिंपल सा आपको ये आइडेंटिफाई करके आना है, ठीक है? सो एक्शन हैपेंड एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, ठीक है? सो यू नो एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट। जो स्पेसिफिक टाइम मेड हर डेब्यू से क्लियर कर दिया, तो हमको पास्ट परफेक्ट पे जाना है। मैंने आपको पहले भी कहा था पास्ट परफेक्ट वाले सेंटेंसेस में यूजुअली दो टेंसेस होते हैं, एक सिंपल पास्ट में होता है और एक पास्ट परफेक्ट में होता है। आपको गौतम क्लियर है ये? अच्छा, गौतम ने आंसर दिया, अच्छा ठीक है, चलो। सो सी दिस, सो फार दिस मंथ 15 इलेक्टेड लॉयर्स, सो फार दिस मंथ। आपको समझ में आ रहा है? प्रेजेंट का क्लू है। अभी आज आप सीख लो, आप एक बार घर पे रिवाइज करना, कल मैं ज्यादा क्वेश्चंस इंक्लूड कर लूंगी, ठीक है? आर वी एबल टू सी? हैड ऑप्टेड नॉट टू रन फॉर री इलेक्शन। सो हैड नहीं आएगा क्योंकि क्लू टाइम का है और दूसरा कोई टेंस है नहीं स्टेटमेंट में। सो आर वी क्लियर? विल बी हैव आएगा रितिका, बिल्कुल, वेरी गुड मुदित, बिल्कुल ठीक है। तो हैड वाले दोनों ऑप्शंस तो एलिमिनेट हो गए। have opted for not to run for re-election, have opted for not another run at re-election। so another run और re-election ये तो redundant हो गया ना? बिल्कुल ठीक है, yes, very good राधा, very good मुदित, good रितिका, good अरुण, very good। so C is the answer। any doubts anybody? सबको समझ में आ रहा है? करेक्ट करा है आपने, बिल्कुल सही करा है, वेरी गुड। चलें आगे, चलो गुड। अच्छा, यहाँ पर आई एम ट्राइंग टू इनकॉर्पोरेट सम मोर कॉन्सेप्ट्स। देखो, ईच ऑफ द किटन्स, आपको मैंने प्रोनाउंस की क्लास में पता नहीं कितना जोर जोर से बताया था कि ईच को सिंगुलर लेंगे, ठीक है? सो ईच ऑफ द किटन्स इन द एनिमल होम हैड बीन आ गया। अब देखो कोई है, स्पेसिफिक एक्शन हो रहा है, बिफोर दे वर अबैंडन्ड, तो हैड तो करेक्ट हो गया। एक्शन दैट हैज हैपेंड बिफोर अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट, तो आपको क्या समझ में आ रहा है? पास्ट परफेक्ट यूज होगा। ये समझ में आ रहा है? ये क्लियर है? पहले हाँ ना बोलो, इसके बेसिस पे बी और सी को एलिमिनेट कर देंगे। गौतम आपको समझ में आ रहा है? थम्स अप मत करना, मेरे को दिखता नहीं है किसने करा है। बी सी को एलिमिनेट कर दिया, अरुण ने तो आंसर भी दे दिया, वेरी गुड। नताशा ने भी दे दिया, गुड। और ईच ऑफ द किटन सिंगुलर है, तो मेजरली ऑन द टर्म्स ऑफ टेंसेस ये एरर एलिमिनेट हो गया। ईच ऑफ द किटन्स इन द एनिमल होम हैड बीन नेग्लेक्टेड बाय देयर, तो ईच ऑफ द किटन्स बेसिकली, हाँ बताती हूँ मैं गौतम, ईच ऑफ द किटन सिंगुलर है तो देयर नहीं आ सकता, इसलिए प्रोनाउन का और नाउन का अग्रीमेंट इनकरेक्ट है। सो दैट इज द रीजन डी विल बी द आंसर। करेक्ट है, बिल्कुल ठीक है। सो देखो, ये एक एक्शन हो रहा है, किटन को नेग्लेक्ट कर दिया बिफोर अ स्पेसिफिक एक्शन दैट हैज हैपेंड इन द पास्ट। वो स्पेसिफिक एक्शन क्या था कि उसको अबैंडन कर दिया था। मैंने आपको कहा था पास्ट परफेक्ट के सेंटेंस में दो टेंसेस होंगे, एक तो टाइम स्पेसिफिकेशन बताएगा और एक एक्शन जिसमें एम्फेसिस हो रहा है उसकी बात करेगा। गौतम आप ठीक है? आप इसको बेस सेंटेंस मान के कर लो। आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क बिफोर लंच अराइव्ड, तो ये जो हैड कंप्लीटेड है या नेग्लेक्टेड वाला एक्टिविटी है ये, राइट? और अबैंडन्ड में लंच अराइव्ड है, राइट? ठीक है, इज दिस क्लियर टू एवरीबडी?
I hope these 3 questions were clear. I hope the concept was clear. एक बार घर पे जाके रिवाइज करना. आज मेरा emphasis was more to do the concepts. ठीक है? चलो. So this is your homework. Do this as a homework. ठीक है? And I've already told you about this channel on Unacademy. Of course, we are meeting at 9. Reading comprehension का achievers batch evening में कर रहे हैं, उसी को continue करेंगे. We'll be doing reading comprehension and the comprehension has been previously asked. Okay. So कल mixed bag set कर रहे हैं at 8 AM. Please do come. Reading comprehension. I hope और कुछ नहीं आपको मैंने इन टर्म्स ऑफ सेंटेंस करेक्शन मोस्टली आप कवर्ड. इडियम्स और फ्रेजेस आपको याद करना पड़ेगा, इसलिए मैंने इंक्लूड नहीं करा. 9 AM पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे. इवनिंग में वोकैब प्लस सेंटेंस कंप्लीशन कर रहे हैं, सो प्लीज डू ज्वाइन. राइट. सो फॉर द अपकमिंग batches which we have for IPMAT, these are amazing features. The sessions are interactive. You can practice tests. There are daily sectional tests. You can access notes from one place. You can see the lectures as many times as you want, and every 4th session is a doubt one. This is the test series that is happening every day. Please participate. अच्छा exposure मिल जाता है, right? And in case you're planning to go for a subscription, please use the code JNLive10, right? And this is a new channel for IPMAT DBA. You can subscribe this channel also. I hope you found today's class useful. Please let me know what else would you want, and join me at 9. We are doing reading comprehension. Okay, so please take care. God bless you. See you at 9 AM.